So yes, we start today. In the previous class, we were discussing the miscellaneous questions and previous year JEE questions based on trigonometric ratios and identities and equation, and mostly based on equations. And today also we are going to discuss the questions based on the trigonometric equations, as well as some questions could be there from the ratios and identities also. That's a miscellaneous mixed exercise there. The first one, which is from again from a JEE exam, previous year exam. The question is, find all the values of theta in the interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Actually most of the question जो अब तक आपने देखे ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपने देखा है कि एक इंटरवल तो गिवन होता है, 0 to 2 pi, minus 2 pi to 2 pi, 0 to pi, like that. Most of the questions are based on the interval is given और उसमें कुछ values find out करना होती है. In minus pi by 2 to pi by 2, satisfying the trigonometric equation 1 minus tan theta into 1 plus tan theta into sec square theta plus 2 raised to power tan square theta equals to 0. Find all values of theta which is satisfying this trigonometric equation. Please attempt. Think over that. Simple one. Okay, we discuss that. 1 minus tan theta, 1 plus tan theta, that can be written as 1 minus tan square theta. Right? Into sec square theta also can be written as 1 plus tan square theta plus 2 raised to power tan square theta equals to 0. एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ऑब्जर्व करने वाली बात कर रहे हैं ना आप लोग. 2 raised to power tan square theta है ना. It is becoming a plus b a minus b a square minus b square 1 minus tan raised to power 4 theta plus 2 raised to power tan square theta equals to 0, right? Just think over that. A square minus b square, sec square theta is 1 plus tan square theta, a plus b a minus b a square minus b square which is 1 minus tan raised to power 4 theta, ठीक, plus 2 raised to power tan square theta equals to 0. यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है, if I ask you the range of tan theta, what is the range of tan theta? It's all real values. If I ask you the range of tan square theta or tan raised to power 4 theta, it is going to be positive real values including 0. Positive real values 0 को include करते हुए, right? है ना. If I ask you tan square theta क्या होगा या tan raised to power 4 theta क्या होगा, तो that is going to be positive real values including 0. Problem क्या है यहाँ पर? That's the exponential function, that's polynomial type of function in trigonometric functions. तो दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. और सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस समटाइम्स विल हैव टू यूज हिट एंड ट्रायल अप्रोच. क्या वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ये कहिए कि बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन क्या वैल्यू सेटिस्फाई करती है, वैसा देखना होता है. सो कैन यू थिंक ओवर दैट? इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दैट 2 raised to power tan square theta, तो 2 tan square theta की रेंज इज 0 to infinity, है ना. Just solve that. This 10 raised to power 4 theta minus of 1 is equals to 2 raised to power tan square theta. अगर अब मैं और सॉल्व करूं, if I take tan square theta is equals to t, so it will become t square minus 1 equals to 2 raised to power t. ऐसा समझ लीजिए. tan स्क्वायर थीटा को t रख दिया मैंने, तो t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 raised to power t. जस्ट ऑब्जर्व 2 raised to power t एक्सपोनेंशियल फंक्शन, t स्क्वायर माइनस 1 है ना. इफ आई से y इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1 या y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, दैट्स अ पैराबोलिक टाइप ऑफ फंक्शन. ये दोनों वैल्यूज कब इक्वेट कर पाओगे आप? t स्क्वायर माइनस 1 2 raised to power t के कब बराबर होगा? t स्क्वायर माइनस 1 2 raised to power t के कब बराबर होगा? जस्ट by observation itself you can solve the question, and in fact with the help of hit and trial only you have to solve. otherwise कैसे करोगे? ये एक अलग टाइप का फंक्शन है, एक अलग टाइप का फंक्शन है. हिट एंड ट्रायल और ऑब्जर्वेशन और बैलेंसिंग के थ्रू ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट? यार ये कब इक्वेट हो पाएगा, है ना. इन जनरल अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 raised to power x, तो 2 raised to power x is which type of function? 2 raised to power x is going to be like this. ये 2 raised to power x का अगर मैं कहता हूँ y equals to 2 raised to power x, राइट?
यहाँ पे ये बात अलग है कि t इज व्हाट, t इज tan स्क्वायर थीटा, जो कि 0 से इन्फिनिटी में ही वैल्यू ले रहा है. आर यू गेटिंग दिस? 2 रेज़ टू पावर x, दैट इज 2 रेज़ टू पावर x. ये तो मैंने ऑल रियल वैल्यूज के लिए स्केच कर दिया, लेकिन 2 रेज़ टू पावर tan स्क्वायर थीटा है. tan स्क्वायर थीटा तो केवल इसी इंटरवल में वैल्यू ले रहा है. मतलब एक कर्व कितने इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा? जब x की वैल्यूज या जब t की वैल्यूज पॉजिटिव है, इन दैट इंटरवल ओनली. आई थिंक यू आर गेटिंग दैट. इस रीजन में तो आ नहीं रहा है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ दैट साइड. ओके, बढ़िया. If I say t square minus 1, what is that t square minus 1? If I say y is equals to x square minus 1, what's that function? Y plus 1 equals to x square. It is going to be a parabolic function. It's a parabola. कैसा parabola? Opening upwards parabola. कैसा parabola? Opening vertex with vertex. Vertex is what? 0 comma minus 1. Somewhere here 0 comma minus 1. एन ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला. ओपनिंग अपवर्ड से तो कब एक्स एक्सिस को कट करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई 0 रखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. Such type of function is there. Are you getting this? Point is, ठीक है, यहां पर जो x है, जो मैं बात कर रहा हूं, t क्या है? t is tan square theta. Point is 2 raised to power tan square theta only in the positive zone it is existing. This curve is existing. But इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये दोनों कब इक्वेट हो पाएंगे? तो इन दोनों का मतलब क्या है, आपको देखना होगा. दोनों का इंटरसेक्शन कब होगा? तो दोनों का इंटरसेक्शन एक सीधी सी बात है, पॉजिटिव हाफ में जब एक कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, तो पॉजिटिव हाफ में तो इट इज गोइंग टू टेक, जब ये इंटरसेक्शन होगा, दैट्स ओनली फॉर वन पॉइंट. केवल एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन हो रहा है इसका, राइट? दैट्स द पॉजिटिव हाफ, दैट्स द पॉजिटिव हाफ. कब इंटरसेक्ट करेगा? एक बार करेगा. कैन वी डिस्कस दैट विद द हेल्प ऑफ, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए. सो t square minus 1 equals to 2 raised to power t. By observation, are you in a position to tell me the value of t? I think yes you are. If you keep t equals to 3, t की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो, तो 2 raised to power 3 which is 8 is equals to 3 square minus 1, 9 minus 1, 8. That's the only value there. t की वैल्यू 3. Clear? So that means t is what? Tan square theta. So tan square theta is equals to 3. I can use the result as tan square. Sin square theta equals to sin square alpha, cos square theta equals to cos square alpha, and tan square theta equals to tan square alpha. Everywhere the result is what? Theta equals to n pi plus minus alpha, right? So I can write it. Tan square रूट 3 का स्क्वायर होगा पाई बाय 3. tan square theta equals to tan square alpha. Theta equals to n pi plus minus pi by 3. Good. You want only in the interval minus pi by 2 to plus pi by 2, and without any doubt minus pi by 2 से pi by 2 के इंटरवल में जब n की वैल्यू 0 होगी, देन प्लस माइनस pi by 3, राइट? जो रिजल्ट होगा, थीटा बिलोंग्स टू, थीटा की दो ही वैल्यू हैं, एक माइनस pi by 3 और एक pi by 3. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज. दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ थीटा व्हिच इज सेटिस्फाइंग दैट. क्लियर? दैट्स द अप्रोच. यस, हिट एंड ट्रायल का आपको यूज करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हिट एंड ट्रायल में भी तो हमने बहुत एक्यूरेटली इसको मेजर किया ना. हमने दोनों फंक्शन को ऑब्जर्व किया है यार. वन इज गोइंग टू बी लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द अदर वन इज गोइंग टू बी दैट पैराबोलिक फंक्शन, और फिर हमने डिस्कस कर लिया. क्वेश्चन इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos raised to power 8x plus lambda times cos raised to power 4x plus 1 equals to 0. That's the trigonometric equation. We'll have a solution if lambda belongs to the interval, and you have to find out the interval. या ये कह लीजिए कि there are some 4 options given to you and you have to find out the value of lambda. Please solve. So look, cos raised to power 8x plus lambda times cos to the power 4x plus 1 equals to 0. एक बात तो कंफर्म है कि आप इसकी जो पावर है cos to the power 4x, cos to the power 8x, you should not try solving कि cos square x को 1 minus sin square x लिखा और सॉल्व करना चालू किया, मज़ा नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड सा रहेगा, कुछ अलग सोचना होगा. देखिएगा, I can write it lambda times cos to the power 4x
is equals to minus of cos raised to power 8x minus 1. That's okay. So lambda is equals to minus of cos raised to power 8x upon cos raised to power 4x minus of 1 upon cos to the power 4x, right? It is minus of cos to the power 4x minus of 1 upon cos to the power 4x. ऐसा भी लिखा जा सकता है, अरेंज कर रहे हैं हम इसको, राइट? cos raised to power 4x डिवाइड कर दिया इक्वेशन. If I take minus common, it is cos to the power 4x plus 1 upon cos to the power 4x. This. अब सोचिए जरा, ये स्टेटमेंट आपको हिंट दे रहा है, राइट? cos raised to power 4x plus 1 by cos to the power 4x. एक बात तो कंफर्म है कि cos square x हो या cos to the power 4x हो, पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, राइट? और इसको देखते हुए यू शुड थिंक अबाउट am greater than equals to gm. Question itself you will have to take the idea. आइडिया इसलिए मिल रहा है यहां पर कि when you take the geometric mean, जब आप geometric, पहली बात तो पॉजिटिव रियल वैल्यूज में एप्लीकेबल है, सो यस दीज आर गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक, पॉजिटिव रियल वैल्यूज में जब आप ये देखोगे यहां पर कि ज्योमेट्रिक मीन जब लेते हैं आप, कैसे आइडिया मिल रहा है आपको कि शुड थिंक अबाउट एम जीएम? जब आप ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो cos raised to power 4x कैंसिल हो जाएगा. दिस cos to the power 4x is getting cancelled. बस उस चीज को हम यूज करने वाले हैं. cos to the power 4x plus 1 by cos to the power 4x divided by 2 is greater than equals to, दो नंबर्स में cos to the power 4x into 1 by cos to the power 4x. So you are getting by observation itself, शायद आप बताने की स्थिति में थे, बता ही देना चाहिए. It's greater than equals to 2. So this number is always going to be greater than equals to 2. ये नंबर हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर ही होगा. When I say lambda is equals to minus of cos to the power 4x plus 1 by cos to the power 4x. If I say minus, if I multiply it by minus sign, it's going to be less than equals to minus 2. So lambda, this number is less than equals to minus 2. It is minus less than equals to minus 2. That's the result you are getting. Lambda belongs to minus infinity to minus 2. What result you are getting? Less than equals to minus 2, minus infinity and minus infinity to minus 2 with close bracket. So the point is, you use the concept of AMGM here and easily you are getting the result. और अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो उलझ जाओगे. हिंट कहां से मिलेगी? क्वेश्चन इटसेल्फ इज गोइंग टू गिव यू द हिंट. क्वेश्चन से ही आपको हिंट मिलने वाली है कि यार AMGM का यूज करना है यहां पर, राइट? प्लीज नोट डाउन दैट. Again a previous year JEE question, find values of x with where x belongs to minus pi to plus pi, which satisfy this trigonometric equation which says 8 raised to power 1 plus modulus of cos x plus modulus of cos square x plus modulus of cos cube x up to infinite number of terms are there is equals to 4 cube. Very attempt previous year JEE question, yes. Values in the interval minus pi to plus pi. Let's see. Number of terms are infinite. Definitely आपको जो hint मिल रही है that is about infinite number of terms and its GP, है ना? Infinite number of terms और उसके GP का जब sum की बात की जाती है, that is nothing but, you are very clear with that. बहुत ठीक ढंग से आपको idea है. That is equals to a upon 1 minus r, and you are very much comfortable with the condition of r. What values r can take, that modulus of r should be less than 1. Only in that case sum of infinite number of terms of GP, that a upon 1 minus r is applicable. इसका भी रीजन हम डिस्कस करते हैं, जब हम लिमिट्स पढ़ते हैं तब हमने उसको डिस्कस किया कि why it is a upon 1 minus r. Sum of n terms of GP
और उसी से डिराइव करते हैं when n tends to infinity what is happening. फिलहाल it is 8 raised to power. If you just observe that सीरीज को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, मॉडुलस ऑफ cos x, मॉडुलस ऑफ cos square x, मॉडुलस ऑफ cos cube x, it's a GP with first term as 1. What is the common ratio here? What is the common ratio of that GP? That is nothing but mod cos x. It is actually क्या है, इसको लिख सकता हूँ mod cos x है, ये mod of cos x whole square है, mod of cos x whole cube है, so common ratio is coming as modulus of cos x. और mod cos x की जो भी रेंज रहेगी वो लेस देन 1. हम ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ओके इट कैन नॉट टेक इट एज 1 नहीं लेने देंगे हम उसको, या फिर जो रिजल्ट आएगा विल डेफिनेटली टेक केयर कि ओके इट शुड नॉट बिकम 1, बिकॉज इफ इट बिकम्स 1 द रीजन इज व्हाट, इफ इट बिकम्स 1 होगा तो क्या होगा, इट शुड बी लेस देन 1, 0 से 1 के बीच की कुछ वैल्यू. द रीजन इज इफ इट बिकम्स 1 तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to infinite number of times will tends to infinity, so it cannot be 1, should be less than 1. पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव रहेगी, mod is there, पॉजिटिव है but less than 1. 8 raised to power 1 upon 1 minus mod of cos x is equals to 4 cube is there which is 64, can be written as that square. We can very well write now it is equals to 2. 1 by 2 is equals to 1 minus modulus of cos x. Modulus of cos x is equals to 1 minus 1 by 2. So mod of cos x is equals to half. ठीक है, mod of cos x equals to half. By observation itself you can say कि क्या रिजल्ट आना चाहिए, जो इंटरवल है दैट इज माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में mod of cos x, when you sketch the mod of cos x, it's a simple one. Mod of cos x equals to 1 in the interval minus pi to plus pi. This is going to be odd multiple of pi by 2, 3 pi by 2. ये तो मैंने पूरा स्केच कर दिया, minus 3 pi by 2. Can you tell me कितनी वैल्यूज होंगी mod of cos x equals to 1 by 2, mod of cos x 1 by 2? कब कब बन रहा है? Yes, please calculate that. बताइए मुझे what are the values of mod cos x equals to half? Please calculate. So yes, can you tell me modulus of cos x equals to half? How many values are there? By observation itself, x equals to pi by 3, 1 by 2 कब कब बनेगा, माइनस पाई से प्लस पाई में. डेफिनेटली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक 1 by 2 की जो वैल्यू होगी पाई बाय 3, then pi minus pi by 3, 2 pi by 3. Similarly for the negative zone also minus pi by 3 and minus 2 pi by 3. That's 1. तो 1 by 2 कब कब बनेगा, तो 1 by 2 clearly 1 by 2 it's becoming 1 time, 2 time, 3 time and 4 time, 4 times. pi by 3 plus minus pi by 3 plus minus 2 pi by 3. आपने भी यही लिखा है, ठीक है. One interesting question. The question is find all pairs of x and y which satisfy the trigonometric equation x square plus 2x sine of xy, angle is xy, plus 1 equals to 0. All pairs of x, y which satisfy that equation. करिए attempt. Yes. X square plus 2x into sine of xy plus 1 equals to 0. What can be done here? तो सोचा आपने? We can definitely think of x square plus 2x sine of xy
should think about adding sin square x plus y, sin square xy and subtracting sin square xy. राइट, साइन स्क्वायर एक्स वाई ऐड किया और साइन स्क्वायर एक्स वाई ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी किया हमने. क्यों किया? शायद क्लियर है आपको. इट्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए. तो साइन स्क्वायर एक्स वाई ऐड किया, साइन स्क्वायर एक्स वाई सब्ट्रैक्ट किया आपने. इट इज बिकमिंग व्हाट? एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर plus 1 minus sin square theta, that is cos square theta. Let it be as it is, equals to 0. right? डेफिनेटली कई क्वेश्चंस में आपने अब तक देखा जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, स्क्वायर्स का सम इट इज व्हाट? एक्स प्लस साइन एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई. सम ऑफ स्क्वायर्स अगर जीरो हो रहा है, इफ आई से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कमिंग एज जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो है तो इट्स वेरी क्लियर दैट ए मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो एंड बी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो साइमल्टेनियसली, देन ओनली द सम ऑफ स्क्वायर्स कैन बी इक्वल्स टू जीरो. बढ़िया. तो दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली जीरो कर दीजिए. बोथ मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, बोथ मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो सेम टाइम, देन ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी इक्वल्स टू जीरो. So it is x plus sine of xy equals to 0, right? As well as this is cos square xy equals to 0. ठीक? Can you think over that? Can you find out the common values for which a equals to 0, b equals to 0, x की values फॉर विच एक्स एंड वाई की वैल्यूज जिसके लिए दोनों इक्वेशन साथ में जीरो हो रही है. प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट दैट. करिए. यस, प्लान किया आपने कुछ? एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो एज वेल एज कॉस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो. साइमल्टेनियसली जीरो होना चाहिए दोनों. डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट, ये तो ऑलरेडी 1 माइनस साइन स्क्वायर था. यहां पर साइन ऑफ एक्स वाई को देखते हुए इधर भी हमने साइन ऑफ एक्स वाई के टर्म्स में लिखना पसंद किया. दैट इज साइन ऑफ sin square xy equals to 1, that means sin of xy equals to plus minus 1, right? sin of xy या तो 1 होगा माइनस 1 होगा. if I take sin of xy equals to 1, sin of xy को अगर मैं 1 लेता हूँ तो if I keep x equals to 1 here, 1 plus sin of xy, sorry, it is x x plus 1 equals to 0, which says x is equals to minus 1. When x is equals to minus 1, again I put x equals to minus 1 here, minus 1 plus sine of minus y equals to 0, and according to that sine of minus y is equals to minus 1, right? x is equals to minus 1. जब x की वैल्यू minus 1 है, again I kept value of x is minus 1, it is minus 1 plus sine of, kept x equals to minus 1, sine of minus y equals to 0, so sine of minus y equals to plus 1. So sine y is equals to minus 1. यहाँ से मैं y की वैल्यू लिखूंगा. That's the one case. मैंने लिया यहाँ पर if sine of x y equals to 1, then x equals to minus 1 and sin y equals to minus 1, and for that I am going to write y. ठीक. The second case, if sin of xy is equals to minus 1, if I take minus 1, solve इसी को कर रहे हैं. So sin of xy minus 1, so x minus 1 equals to 0. According to that x must be equals to 1. Again I kept the value of x there only. जैसे यहाँ पर रखा था x equals to minus 1, इसी में इक्वेशन में रखा था. ठीक वैसे ही x equals to 1 भी हमने उसी इक्वेशन में रखा. 1 plus sin of y equals to 0. इनफैक्ट अगर आप फिर से ऑब्जर्व करते हो sin y क्या आ रहा है? sin of y equals to minus 1. पॉइंट इज, शायद समझ में आने वाली बात है. x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? x equals to 1, sin of y equals to minus 1.
x इक्वल टू -1 और साइन ऑफ y इक्वल टू -1। मतलब इन जनरल क्या बोलोगे, 1 के लिए भी साइन ऑफ y -1 है, -1 के लिए भी साइन ऑफ y -1 है, साइन y इक्वल टू -1 इधर लिख रहा हूं मैं सेपरेटली, साइन y इक्वल टू -1 को क्या लिखोगे, इट इज साइन ऑफ -π/2। यू कैन राइट y इज इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n माइनस ऑफ π/2, राइट, दैट्स द वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या है भाई, साइन y तो -1 है, x इक्वल टू +1 -1, 1 के लिए भी सेम रिजल्ट है और -1 के लिए भी यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो फाइंड ऑल द पेयर्स करके लिखा उसने, मतलब एक पेयर होगा 1 कॉमा दिस वैल्यू ऑफ y एंड दूसरा पेयर होगा -1 कॉमा दिस वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y रिमेन सेम, राइट। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा जो अप्रोच होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, सम ऑफ स्क्वायर्स इज बिकमिंग 0, तो सम ऑफ स्क्वायर्स 0 बन रहा है, तो दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली 0 किया आपने, दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली 0 किया। साइन ऑफ एक्स वाई को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हुए काम किया, साइन स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 1, तो साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू +-1। अब इसको दूसरी इक्वेशन में यूज किया, साइन ऑफ एक्स वाई 1 लिया और फिर साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू -1 लिया, साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 लेने पर एक्स की वैल्यू -1 और साइन वाई की वैल्यू -1, तो उधर पे मैंने वाई के लिए लिखा है, और यहाँ पर x इक्वल टू 1, तो साइन ऑफ y इक्वल टू -1, साइन y इक्वल टू -1 इज ऑलरेडी देयर, तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, +1 -1, और y की दैट्स द वैल्यू n π + -1 टू द पावर n माइनस ऑफ π/2, दैट्स द अप्रोच। प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप से एक और सवाल, प्रीवियस क्वेश्चन में था फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ x एंड y, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट x एंड y वेयर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज 1 - 2x - x² is equals to tan square x plus y plus cot square x plus y। करिए अटेम्प्ट, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 - 2x - x² is equals to tan square x plus y plus cot square x plus y। If you think about, I am just giving you the one of the hint, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, उधर tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म्स में, इधर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, थिंक इन दैट डायरेक्शन प्लीज, करिए अटेम्प्ट, चलो डिस्कस। ओके, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल अलग अलग है, थिंक अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन इन दैट केस ओनली। एज फार एज राइट हैंड साइड इज कंसर्न, राइट हैंड साइड को तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई, क्या दिमाग में आता है। वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द AMGM, अभी हमने प्रीवियसली एक सवाल सॉल्व किया AMGM, मैंने आपको आइडिया भी दिया कि कैसे आपको हिंट मिल जाती है, बिकॉज वेन एवर यू सी द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इफ यू आर टेकिंग टू नंबर्स, उनमें AMGM अप्लाई कर रहे हो तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव रियल वैल्यूज में अप्लाई किया जाता है। इफ यू थिंक अबाउट दिस RHS को अगर आप देखते हो, आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग फर्स्ट ऑन RHS, tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई, आप देखोगे इन दोनों का, इन दोनों नंबर्स स्क्वायर है, पॉजिटिव है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेने पर, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेने पर आई एम गेटिंग 1, ये मेरे लिए हिंट है, एंड आई अप्लाइड AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, पॉजिटिव रियल नंबर्स तो यस स्क्वायर्स हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 is greater than and equals to product of the two numbers, and product of the two numbers आपको शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, डायरेक्टली राइटिंग इट 1, दैट्स द हिंट फॉर मी, वहीं से तो हमने बात चालू करी है। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई is greater than equals to 2, I am getting the information कि जो right hand side है, that right hand side is greater than and equals to 2. Now think about the left hand side, LHS को भी सेपरेटली जरा सॉल्व करें, क्योंकि दोनों को एक साथ में सॉल्व करने का तो कुछ पर्पज ही नहीं है उधर पे। 1 - 2x - x², if I take minus sign common, it is x² plus 2x, माइनस मैंने कॉमन लिया, -1
परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हम यहाँ पे भी करना चाहेंगे तो इट इज गोइंग टू बी +1 and -1 in the bracket itself, so that I can convert it in the perfect square form. It is going to be minus of x plus 1 whole square minus of 2. It is equals to minus of x plus 1 whole square plus 2. The left hand side is coming as minus of x plus 1 whole square plus 2. So left hand side और right hand side, right hand side क्या है? Right hand side is coming as greater than equals to 2 और left hand side को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो LHS is minus of x plus 1 whole square plus 2, right? That's a negative number. Minus of x plus 1 whole square, स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा, मिनिमम वैल्यू इट विल टेक इज 0 जब x की वैल्यू -1 होगी तब ये 0 लेगा, राइट? पॉइंट इज, और अदरवाइज इट इज स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी, वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी विथ नेगेटिव, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो आई कैन डेफिनेटली से LHS इज लेस देन इक्वल्स टू 2 से 2 या 2 से लेस होगा. 2 भी कब बनेगा? 2 भी कब बनेगा? जब x की वैल्यू -1 होगी तब ये 2 बनेगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी लेस देन 2 बिकॉज दिस नेगेटिव नंबर इज देयर. So RHS is greater than equals to 2, LHS is less than equals to 2, तो ये इक्वेशन बैलेंस कब होगी? That equation is going to be balanced at RHS is equals to LHS, तभी बैलेंस होगी. एक कहता greater than equals to 2, एक कहता less than equals to 2, so RHS is equals to LHS is equals to 2. So ठीक है, RHS LHS 2 कब होगा? LHS is equals to 2 when जब x की वैल्यू -1 होगी तभी ये 2 होगा. That's the result there. X must be equals to -1, right? अच्छा, left hand or right hand side must be equals to 2. When I say right hand side must be equals to 2, that means equality hold कर रही है. Otherwise 2 से greater रहेगा. Equality कब hold करती है? Equality hold करती है AMGM में जबकि दोनों नंबर सेम हो. If you are applying in two numbers, both the numbers must be same. Then only RHS must be equals to 2. Sin cos में if I convert it in terms of sin cos, sin square x plus y upon cos square x plus y is equals to cos square x plus y upon sin square x plus y. So it will become sin to the power 4 x plus y is equals to cos to the power 4 x plus y, right? So it is going to be sin to the power 4 x plus y minus of cos to the power 4 x plus y equals to 0. Right, I am writing here a square minus b square, a plus b a minus b. डायरेक्टली भी लिख सकता हूं मैं उसको 10 to the power 4 करके, जैसा भी आप चाहें. 10 sin to the power 4 x plus y equals to cos to the power 4 x plus y can be written as 10 to the power 4 x plus y equals to 1, राइट? वैसा भी किया जा सकता है. ठीक है, वैसा कर लेते. 10 to the power 4 x plus y equals to 1. So 10 square x plus y is also equals to 1. Don't say plus minus 1 because square of a number is always going to be positive. Negative तो होगा नहीं है. So 10 square x plus y equals to 1. It is 10 square pi by 4. Tan square theta equals to tan square alpha, that is equals to theta is equals to n pi plus minus alpha. X is already there with you, so y is going to be, that's -1, so right hand side में +1 plus n pi plus minus pi by 4. That's going to be the final result. ये final result होगा. Clear? फिर से देख लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है. क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया आपने, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इटसेल्फ इज गिविंग यू द हिंट. राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉलिनोमियल फंक्शन है. राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा की टर्म्स हैं, कैंसिल होने पर 1 बनता है. सो आई अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ AMGM, गॉट दिस. RHS इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, परफेक्ट स्क्वायर में जस्ट कन्वर्ट किया और मैंने ऑब्जर्व किया लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल्स टू 2. इक्वेशन बैलेंस कब होगी? इक्वल तो तभी होल्ड करेगा जब RHS और LHS दोनों सेम होगा, विच इज इक्वल्स टू 2.
राइट। तो ये 2 कब बनेगा? जब x की वैल्यू -1 होगी तो x इज गोइंग टू टेक ओनली वन वैल्यू विच इज -1। tan स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल्स टू cot टू द पावर cot स्क्वायर x प्लस वाई, मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, डायरेक्टली भी कर सकता था, 10 टू द पावर 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसी स्टेप से cot स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा लिखते हुए इट्स कमिंग एज सेम, नो प्रॉब्लम। So 10 to the power 4x plus y equals to 1 sin to the power 4x plus y upon cos to the power 4x plus y, that's 1, है ना। So 10 to the power 4 theta equals to 1, so tan square theta is also equals to 1, which is tan square pi by 4, and tan square theta equals to tan square alpha, theta equals to n pi plus minus alpha. So x plus y equals to n pi plus minus pi by 4, x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, you are going to get the value of y, y की वैल्यू आ जाएगी आपको, that's the proof there. Please note down that now. Now the question is, you have to find out the values of y in the interval minus pi to plus pi, satisfying what? Modulus of sin 2x plus modulus of cos 2x is equals to modulus of sin y. Number of values of y in the interval minus pi to plus pi, जो इस इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इंटरेस्टिंग सवाल है, माइनस पाई टू पाई के इंटरवल में y की वैल्यूज पूछा है उसने। कर रहे हैं आप अटेम्प्ट? लेट्स सी। सेटिस्फाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगेन x और y वाली जहां पर बात आए ना, थिंक अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, दैट्स द ओनली वे, है ना। थिंक अबाउट दैट। मॉडुलस ऑफ साइन y की अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट मॉडुलस ऑफ साइन y, तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं कि साइन y की रेंज होगी, साइन थीटा की रेंज -1 टू +1। इफ आई से मॉडुलस ऑफ साइन थीटा, डेफिनेटली 0 से 1, so modulus of sin y is less than equals to 1, greater than equals to 0 also, है ना। What about this? If it is sin 2x, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर ऑब्जर्व करता हूँ, अगर ये sin 2x प्लस cos 2x होता तब क्या रेंज होती है इस एक्सप्रेशन की? तो शायद बहुत आसानी से आप बता लेते कि माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट minus of root over a square plus b square to root over a square plus b square, which is root 2, and this is minus of root 2. ठीक, लेकिन it's not sin 2x plus cos 2x, it is modulus of sin 2x plus modulus of cos 2x. Anybody can tell me the range of that? AOD में भी जब हम सवाल डिस्कस करते हैं तब भी हमने इसके बारे में बात करी थी। और प्लीज डू रिमेंबर वन फैक्ट कि मॉडुलस ऑफ sin x प्लस मॉडुलस ऑफ cos x, modulus of sin x plus modulus of cos x, range of that function है ना, it's mod there, पॉजिटिव रहेगी तो कंफर्म है, लेस देन इक्वल्स टू रूट 2 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस। मॉड sin x प्लस मॉड cos x 1 से रूट 2, सो इफ इट इज x और 2x और 3x, sin modulus of sin 2x plus modulus of cos 2x greater than equals to 1 but less than equals to रूट 2। हाँ, ये फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। mod sin x plus mod cos x, please do take care of this result, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, mod sin x plus mod cos x। सर कैसे आ जाता है? mod sin x स्केच कर सकते हो आप? mod sin x पीरियोडिक फंक्शन है, रेंज 0 से 1, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। mod cos x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई, रेंज विद 0 टू 1। दोनों फंक्शंस को स्केच कर लो, मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स को। 0 से पाई, दोनों एक 0 से पाई का इंटरवल लो एंड जस्ट चेक द वैल्यूज, दोनों को ऐड करके देख लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट एज 1 टू रूट 2। और बाय द वे वैसे ही याद रखिएगा हमेशा, सो 1 टू रूट 2। पॉइंट इज लेफ्ट हैंड साइड सेज यार ये रेंज 1 से रूट 2 में रहेगी, क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू रूट 2। राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अगेन बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन इज हैपनिंग एट, ये LHS इक्वल्स टू RHS तो केवल तभी होगा जब दोनों 1 होंगे, राइट? जब LHS भी 1 होगा, क्योंकि ये 1 से लेके रूट 2, तो भैया हम चाहते हैं इट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 एंड दिस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1। ये अपनी मिनिमम वैल्यू ले 1 और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले 1, देन ओनली दैट इज बैलेंस्ड। सो
मुझे केवल y पूछा गया, वैल्यूज ऑफ y, so mod of sin y is equals to 1, which says sin y equals to plus minus 1. If it is plus minus 1, I can write the result, sin mod of sin y equals to 1, sin y equals to plus minus 1, sin y equals to 1 के लिए रिजल्ट लिख दूंगा और sin y equals to minus 1 के लिए ओके. एट द सेम टाइम इंटरवल इज ऑल्सो गिवन, फाइन. इफ इंटरवल इज गिवन तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. इंटरवल गिवन है माइनस पाई टू प्लस पाई, साइन थीटा में चेक कर लीजिए. वन कब बनेगा ये और माइनस 1 कब बन रहा है, तो 1 माइनस पाई टू प्लस पाई के इंटरवल में 1 एट पाई बाय 2, एक तो पाई बाय 2 होगा और एक माइनस पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग इट विल बी टेकिंग 1 और माइनस पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग इट विल बी टेकिंग माइनस 1. और इन दोनों ही केस में मॉडुलस जब आप लोगे तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 1. सो प्लस माइनस पाई बाय 2, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ y which satisfy that equation. That's the approach. Most of the cases आप देख रहे हो ना, LHS RHS बैलेंस करने की बात है. Now the next question, find the number of solution of the equation, trigonometric equation is there, greatest integer of sin x plus cos x is equals to 3 plus greatest integer of minus sin x plus greatest integer of minus cos x. Square bracket represents here greatest integer function which represents the integer value less than equals to x. Greatest integer of sin x plus cos x is equals to 3 plus greatest integer of minus sin x plus greatest integer of minus cos x in the interval where x belongs to 0 to 2 pi. करिए, सोचिए. देखिएगा, अगेन ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. हम ना काफी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न के ऊपर. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. इफ आई डिस्कस अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, LHS. इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो इफ आई से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रेंज ऑफ दैट फंक्शन माइनस ऑफ रूट 2 to plus root 2, minus of root over a square plus b square to root over a square plus b square, and root over a square plus b square is the maximum value and minus of root over a square plus b square is the least value. ठीक. So LHS is less than equals to root 2. राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं, अगर हम एक और बात ऑब्जर्व करें कि लेफ्ट हैंड साइड में even if we take its maximum value, लेफ्ट हैंड साइड में जो sin x प्लस cos x है अगर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी लेता है, मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, रूट 2. सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपनी ये sin x प्लस cos x रूट 2 मैक्सिमम वैल्यू लेता है, इवन इन दैट केस रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना 1.414 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट इज गोइंग टू बी 1. तो एक बात कंफर्म है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज गोइंग टू बी less than equals to 1. राइट. 1 से लेस में क्या हो सकता है, इट कुड बी 0, इट कुड बी माइनस 1, माइनस ऑफ रूट 2 मतलब माइनस 1.414 और ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका माइनस 2. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो रेंज होगी माइनस 2 से 1, बट मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी. LHS इज लेस देन इक्वल्स टू 1. ऑब्जर्व करिए राइट हैंड साइड को. आई होप शायद समझ में आ रहा होगा आपको. 3 इज अ फिक्स वैल्यू दैट इज देयर. साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस 1 to 1 और माइनस साइन एक्स भी अगर कहता हूं तो रेंज रिमेन सेम. इफ साइन एक्स इज माइनस 1 to plus 1, so minus of sin x is going to be again minus 1 to plus 1. The same is happening for minus of cos x also. That's fine. So 3 is there. Left hand side is very clear कि maximum value 1 लेने वाला है. Right, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल होने के लिए जरूरी है
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स ओनली इन केस कि जब दोनों अपनी वैल्यू 1 ले लें. द रीजन इज वेरी सिंपल. ये 3 एक फिक्स वैल्यू है. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू -1 as well as greatest integer of minus cos x must be equals to -1, right? क्योंकि जब साइन माइनस ऑफ साइन एक्स की रेंज -1 to +1 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा? तो -1 ही लेगा, उससे कम तो हो नहीं सकता. माइनस ऑफ cos x की मिनिमम वैल्यू -1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका -1 ही होगा. दैट मीन्स ये दोनों अपनी मिनिमम वैल्यू लें. तभी ये 3 -1 तो 3 - 2 will become 1. That means sin x plus cos x must take its maximum value and minus of sin x and minus of cos x must take their minimum value. In that case only the equation is going to be a balanced one. इसी केस में equation balanced होगी. Just think over that now. Find out you have to find out number of solution in that interval. I have given you the clear cut hint. सब कुछ आपके सामने. Just think over the values of x. बताइए कितनी values आ रही है x की, right? Just think over that. So yes, कुछ प्लान किया आपने? ठीक है, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड 1. राइट हैंड साइड को 1 होने के लिए जो आपको सोचना चाहिए था, ज्यादा कैलकुलेशंस मत करिए. राइट हैंड साइड को 1 होने के लिए जरूरी है कि दोनों -1 लें. आपको क्या लगता है? इज इट पॉसिबल कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स इज -1 एज वेल एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू -1? दोनों अपनी मिनिमम वैल्यू कैसे ले सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स नॉट पॉसिबल. इफ इट इज -1 इट कैन नॉट बी -1. ठीक, और अगर ये -1 है तो ये -1 नहीं हो सकता. साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट टेक देयर मिनिमम वैल्यू. सो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों -1 हो जाए. दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो पाए, क्योंकि ये 1 के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट्स द सेम एंगल, x इज देयर. तो x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप कहते हो कि माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो और माइनस ऑफ कॉस एक्स भी -1 के बराबर हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो क्या रिजल्ट होना चाहिए? द रिजल्ट इज गोइंग टू बी going to be no solution. Result is no solution. Let's take an interesting question here. Question is the number of points inside or on the circle. Number of points inside or on the circle x square plus y square equals to 4, satisfying the trigonometric equation 10 raised to power 4x plus cot raised to power 4x प्लस 1 इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर वाई. काफी क्वेश्चन देख लिए हमने एक्स और वाई वाले, जहां पे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस की बात है. दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप ओनली. थिंक अबाउट द राइट हैंड साइड, थिंक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्राई टू सॉल्व. उसने कहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर इनसाइड और ऑन द सर्कल. सो दैट सर्कल इज क्लियरली विद द सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2. करिए अटेम्प्ट. So let's see the solution here. Again I am concentrating on left hand side as well as right hand side. Left side में x का फंक्शन है, right side में y का फंक्शन है, सेपरेटली सॉल्व करना होगा. और लेफ्ट हैंड साइड को भी जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे ये जब 10 to the power 4x plus cot to the power 4x, टुडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. एम जी एम शायद अब बहुत क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है. m ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm आप अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों नंबर्स में. 10 to the power 4x plus cot to the power 4x divided by 2 is greater than equals to square root of multiplication which is going to be 1. So 10 to the power 4x plus cot to the power 4x is greater than equals to 2. 1 is already there. So I can definitely say that LHS is greater than and equals to 3. That's simple. AM GM कई बार यूज कर लिया हमने. राइट हैंड साइड को देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड sin square y की जो रेंज होगी दैट इज व्हाट
0 to 1. So RHS is less than equals to 3 is already there. 3 into 1 that is 3. So equation balanced कब होगी? Equation balanced कब होगी? When LHS is equals to RHS is equals to 3. जब LHS RHS इक्वल होके 3 के बराबर होगा तब इक्वेशन बैलेंस होगी, राइट? LHS must be 3, RHS must be 3. That means इसका मतलब क्या हुआ? Sin square y should take its maximum value as 1. कंपल्सरी 1 होना चाहिए. And if you observe here कि 10 to the power 4x plus cot to the power 4x must be equals to 2. So AMG में equality holds when numbers are same. For that 10 to the power 4x must be equals to cot to the power 4x, or you can say 10 raised to power 8x is equals to 1, and after solving you are getting 10 square x equals to 1, which is nothing but tan square pi by 4, and that solution is nothing but x is equals to n pi plus minus pi by 4. Tan square theta equals to tan square alpha, theta equals to n pi plus minus alpha. So x is coming as n pi plus minus alpha. Sin square y equals to 1, which says 1 minus sin square y equals to 0, that is cos square y equals to 0. Or I should say y is odd multiple of pi by 2. Odd multiple of pi by 2. n और m इंटीजर हैं. सर्कल के अंदर या ऊपर x square plus y square must be equals to 4. So if I talk about that circle, that's a circle with center 0, 0, radius 2, 2, 0, minus 2, 0, 0, 2, 0, minus 2. What's the range of x? x की रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ x क्या है? -2 to 2. एंड सिमिलरली रेंज ऑफ y क्या होगी? -2 to 2. आपको जो अपना सॉल्यूशन सर्च करना है, क्योंकि आपको देखना है ना कितने पॉइंट्स हैं इनसाइड एंड ऑन द सर्कल, तो आपको देखना होगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. यू हैव टू टेक केयर कि दैट मस्ट बी देयर इन द रेंज ऑफ -2 to +2, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी इनसाइड द सर्कल. सिमिलरली y मस्ट बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. सो ठीक है, y की जो वैल्यू है, y की भी जो रेंज है वो -2 से 2 के बीच में होना चाहिए. अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सर्च फॉर दैट. तो इफ आई टेक n इक्वल्स टू 0, n अगर मैं 0 लेता हूँ तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय 4. प्लस माइनस पाई बाय 4, 3.14 डिवाइड बाय 4, यस दैट्स वैल्यू डेफिनेटली देयर इन दिस इंटरवल -2 to 2. तो ये वैलिड रिजल्ट है. इफ आई टेक n इक्वल्स टू 1 हियर, अगर n की वैल्यू 1 लेता हूँ मैं, तो n की वैल्यू 1 लेने पर इट इज बिकमिंग पाई प्लस पाई बाय 4 and pi minus pi by 4. Pi plus pi by 4 there is no scope of that, क्योंकि तो pi plus pi by 4, pi is 3.14 ना, तो हम तो -2 से 2, there is no point in that. And 4 pi minus pi, that is going to be 3 pi by 4. 3 pi by 4 is also exceeding 2. 3 pi by 4 is what? 3 pi by 4 की वैल्यू क्या होगी? 3 into 3.14, 9 point something divided by 4, no, that is also not there. Similarly n equals to -1 भी रखोगे आप तो that is not there. Only these two values are possible for x. तो एक x जो ले सकता प्लस माइनस पाई बाय 4, राइट. थिंक अबाउट y also, y की वैल्यू. इफ आई टेक m इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू 0 लेने पर इट्स पाई बाय 2, 3.14 डिवाइड बाय 2, ओके दैट इज देयर, -2 से 2 के बीच में, दैट इज वैलिड. इफ आई टेक m इक्वल्स टू 1, तो इट विल बी 2 + 1, 3 पाई बाय 2, नो दैट विल नॉट बी देयर. इफ आई टेक m इक्वल्स टू -1, -2 + 1, that is minus of pi by 2, and minus pi by 2 is also okay.
-2 लेने पर -4 + 1 -3 π/2, दैट इज अगेन नॉट देयर. पॉइंट इज x की क्या वैल्यू मिली आपको आफ्टर सॉल्विंग? ये हमें सर्च करना पड़ेगा डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि हमें सर्कल के अंदर या ऊपर x क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू ± π/4. y क्या होना चाहिए? ± π/4. Sorry, ± π/2. How many points are there? So how many points are there? Can you tell me how many points are there? If x is plus π/4, तो y की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, π/2 as well as -π/2. And if x equals to -π/4, तब y की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, +π/2 as well as -π/2. How many points are there? 4 points are there. π/4, π/2, π/4, -π/2, -π/4, π/2, and -π/4, -π/2. These are the 4 points which are there inside the circle. मान लीजिए अगर इस सवाल में x² + y² = 9 होता, if it is 9, तब क्या करना होता आपको? काम थोड़ा सा बढ़ जाता. If it is 9, x -3 से 3 और y -3 से 3 होता. हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज चेक कर लेते कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर. कुछ पॉइंट्स और बढ़ जाते. Yes, you will have to keep the values of n and m which are integer values, और चेक करते आएंगे कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर विच आर देयर इन द रेंज ऑफ -3 to +3 एंड y इज -3 to +3. अगर x² + y² = 9 सर्कल होता तो, राइट? दैट्स द अप्रोच. गुड क्वेश्चन. So now I am taking a previous year JEE question. It's a simple one. Find the number of solutions of the pair of equation 2 sin² theta minus cos 2 theta equals to 0 and 2 cos square theta minus 3 sin theta equals to 0. Pair of equation, दो equations आपको given है in the interval 0 to 2 pi. Simple equations हैं वैसे. जो result है number of solutions of the pair of equation. Number of solutions pair of equation की बात कर रहा हूँ, मतलब values of theta which satisfy both. ये ध्यान रखिएगा, है ना? Which satisfy both of the equation. Theta must be there in the interval 0 to 2 pi. कर रहे हैं आप अटेम्प्ट? इजीली सॉल्व होना चाहिए. करिए प्लीज. कैन डू. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन देयर. द फर्स्ट वन सेज 2 sin² theta minus cos 2 theta equals to 0. ओके, इट इज व्हाट एक्चुअली? 2 sin² theta. प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन है, 2007 में पूछा हुआ. 2 sin² theta minus of 1 minus cos 2 theta can be written as 2 sin² theta, वैसा भी लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू 0. इट इज बिकमिंग 2 sin² theta plus 2 sin² theta, 4 sin² theta minus 1 equals to 0, which means sin² theta equals to 1/4, or you can say 1/2 का स्क्वायर है. I can write it sin² π/6 लिख सकते हैं. sin, and then we are going to apply sin² theta equals to sin² alpha, theta equals to n pi plus minus alpha. sin² theta equals to sin² alpha is what? Theta equals to n pi plus minus alpha. You want in the interval 0 to 2 pi ना, you will have to check one by one कि कितनी वैल्यूज हैं जो 0 से 2 pi में आएंगी. If I take n equals to 0, 0 रखने पर what you are getting, है ना? You want 0 to 2 pi. 0 रखने पर you are going to get plus minus pi/6. माइनस pi/6 का कोई स्कोप नहीं. थीटा इज इक्वल टू pi/6, राइट? इफ आई कीप n इक्वल टू -1, नेगेटिव वैल्यू रखने पर -1, नेगेटिव थीटा की नेगेटिव वैल्यू होगी, विच इज नॉट पॉसिबल. टेक n इक्वल टू 1, इट इज थीटा इज pi plus minus pi/6. Okay, pi plus minus pi/6 means what? Pi plus pi/6 will be 7 pi/6, as well as pi minus pi/6 is going to be 5 pi/6. In fact, अगर आप दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं तो both the values are there in the interval 0 to 2 pi. ये दोनों भी काउंट की जाएगी. Okay, take n equals to 2 there. Theta equals to 2 pi plus minus pi/6. Right? If I take plus pi/6, it will exceed by 2 pi. 2 pi से बढ़ जाएगा. Take minus pi/6. 2 pi minus pi/6. 12 pi minus pi. 11 pi/6.
दैट्स द ओनली वैल्यू, क्योंकि उसके बाद में वैल्यू 2 पाई से इंक्रीज ही रहेगी. तो देयर आर 4 वैल्यूज, पाई बाय 6, 7 pi by 6, 5 pi by 6 and 11 pi by 6. These are the 4 values of theta which I am getting for this equation, which is the first equation. Now we solve the second one. 2 cos square theta minus 3 sin theta equals to 0. Simplest one in fact. 1 minus sin square theta minus 3 sin theta equals to 0. It's a simple quadratic in terms of sin theta. 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 equals to 0. This is going to be factorize कर लेंगे, ठीक है. If I take 2 sin theta common, so sin theta plus 2 minus 1 common, so sin theta plus 2 equals to 0. 2 sin theta minus 1 into sin theta plus 2 equals to 0. This cannot be equals to 0. हटा दीजिए इसको. sin theta cannot be equals to minus 2. समझाने वाली बात नहीं रही. sin theta is coming as 1 by 2. So sin theta is 1 by 2, right? 0 से 2 pi. देख लीजिए sin थीटा 1 by 2 कब बनेगा. दैट्स वेरी सिंपल. sin थीटा का कर्व स्केच किया आपने और 0 से 2 पाई. 0 से पाई इज द ओनली इंटरवल जिसमें sin थीटा पॉजिटिव होगा. पाई से 2 पाई में sin थीटा नेगेटिव होगा. एंड थीटा इज गोइंग टू बी पाई बाय 6. क्या स्केच करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं. थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6. बट ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व की. पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब देयर मस्ट बी कॉमन वैल्यूज. अगर कॉमन वैल्यूज हैं तो हम कहेंगे सॉल्यूशन है, और नहीं है तो नहीं कहेंगे. तो पाई बाय 6 एज वेल एज 5 पाई बाय 6 दोनों जगह आ रहे हैं. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर गोइंग टू बी 2. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होंगे. कौन कौन से 2? विच 2? पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6. पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6. दैट्स द अप्रोच.